So hey everyone, in our today's session, after very long time, today again I discuss with you about the article from the Hindu. Okay, article from the Hindu. Okay, so let's continue. First of all, you can see over the screen. Here are some quotes, motivational quotes, and the slides of the day. You can see over here. Here we'll discuss about the Odisha's ban and also the SCO's meeting with the Rajnath Singh, who's defense minister of our country, who is attending this particular meeting of the SCO. And then we'll talk about the cervical cancers cases, as how many numbers are running like that, and again about the cervical cancers issue. And this is the slide particular from our yesterday's session, over which I'll talk about the Rohingyas of Myanmar. Okay, Rohingyas are the Muslim communities of the Myanmar. Okay, so without further delay, let's continue. Okay, our very first article of the day, it is about the recusal test the Delhi High Court's failed. Here you can see, and the authors is the Kaleshwaram Raj, lawyer at the Supreme Court of India. Okay, SCI. So you are guys, if are interested, so you can also go through by this particular newspaper slide, but here are some snapshots from this particular article. मोर और लेस जो ये आर्टिकल मेंशन्ड है वो ही यहाँ पे नोट्स हैं. ओके, सो व्हाट आर द हेडलाइंस इनसाइड द आर्टिकल आर्ग्यूड दैट द दिल्ली हाई कोर्ट failed an important judicial recusal test. It is about the Arvind Kejriwal. Okay, ठीक है. So background of the case: Justice Swarnakanta Sharma refused to recuse herself from the hearing the Delhi liquor policy case. Actually, Delhi's former CM Arvind Kejriwal's related case, who's been found accused with respect of the liquor case. ठीक है, and his case was handling via the Justice Swarnakanta Sharma from the Delhi High Court. Okay, the case involved the Central Bureau of Investigation (CBI) and the former Delhi CM Arvind Kejriwal. Okay, date of the context around the April 2026. ठीक है, means it is the date from this particular month. Arguments for recusals: Kejriwal argued that the judge had previous adverse findings in the same case. ठीक है, there was concern about ideological biasness. Okay, the judge attended events linked to अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद ABAP. मीन्स जो जज हैं वो करंट रूलिंग पार्टी बीजेपी से उनका कुछ इंटरलिंक्ड है, एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ द रीज़न वाई दिस पर्टिकुलर दैट former CM of Delhi Arvind Kejriwal, who is denying to deal with this case with this regarding with this particular judge, whose name is Swarnakanta Sharma. Okay, here are some reasons. Her children worked with the government linked legal roles. Okay, so reason is that the जस्टिस जो हैं, इनके जो बच्चे हैं वो करंट रूलिंग गवर्नमेंट बीजेपी के लिंकेज में वर्क कर रहे हैं. स्टेटमेंट्स बाय अमित शाह हिंटेड एट पॉसिबल केस आउटकम्स. ओके, बेस्ड ऑन दीज केजरीवाल क्लेम्ड रीजनेबल अप्रहेंशन ऑफ बायसनेस, की कहीं ना कहीं यहाँ पे बायसनेस का इश्यू ज़रूर क्रिएट होगा. ओके, डन. लॉ ऑन जुडिशियल रेक्यूजल. रेक्यूजल लॉज इन इंडिया नॉट कोडिफाइड. पहली बात तो कोडिफाइड नहीं है, मोस्टली एथिकल रेदर देन लीगल. GS 4 ऑफ एथिक्स. ठीक है, एथिक्स UPSC सिलेबस, जिसमें हम बात करते हैं इम्पार्शलिटी, प्रिवेसी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी. सो कहीं ना कहीं ये एथिक्स के हमारे कोर सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, कोर वैल्यूज़ हो जाती हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ एथिक्स. ठीक है, सो वाई दीज आर रेक्यूजल्स लॉ इन इंडिया इज़, पहली बात तो कोडिफाइड नहीं है, मोस्टली एथिकल रेदर देन लीगल. ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रेसिडेंट्स एंड जुडिशियल प्रिंसिपल्स. ठीक है, की प्रिंसिपल्स: जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट ऑल्सो सीन टू बी डन. इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स लाइक दी बेंगलोर प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल कंडक्ट आता है 2002, उससे इसको इंटरलिंक बताया.
सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ क्लैरिफाइड जजेस मस्ट कंसिडर परसेप्शन ऑफ बायस होना चाहिए, है ना, इनका जो परसेप्शन है, नॉट जस्ट एक्चुअल बायस, ठीक है, एक्चुअल बायस नहीं होना चाहिए। इवन रीजनेबल डाउट इन पब्लिक माइंड कैन जस्टिफाई रिक्यूजल्स, इंपॉर्टेंट केसेस हियर विल टॉक अबाउट। रंजीत सिंह ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आता है 1987 में, उसमें बात की जाती है जज जो है मस्ट कंसिडर परसेप्शन ऑफ द फेयरनेस, मीन्स अगेन यहाँ पे फेयरनेस की बात की है, ट्रांसपेरेंसी की बात की है 1987 के केस में, जजमेंट में। फिर पीके घोष का केस आता है जो कि जे.जी. राजपूत 1995 में आता है, 1995 में आता है। इसमें बोला जाता है कि रिक्यूजल अप्रोप्रिएटिव लिटिजेंट, ठीक है, रीजनेबली डाउट इम्पार्शियलिटी, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इम्पार्शियलिटी के बारे में बात की है। स्टेट ऑफ द पंजाब वर्सेस दविंदर पाल सिंह भुल्लर का केस आता है इन द ईयर ऑफ 2011। अपीयरेंस ऑफ बायस मैटर्स, ठीक है, यहाँ पे बायस मैटर्स की अपीयरेंस हुई थी पंजाब के जो केस में, जो कि दविंदर पाल सिंह भुल्लर के रिगार्डिंग 2011 का जो केस हमारा था, ठीक है, ओके। लेट्स टॉक अबाउट द कोर जुडिशियल प्रिंसिपल टेस्ट। वुड रीजनेबल होना चाहिए, इन्फॉर्म पर्सन डाउट द जज इम्पार्शियलिटी, ठीक है, पर्सन को पता हो कम से कम कि जज की इम्पार्शियलिटीज़ क्या है, ठीक है। नो स्ट्रिक्ट ड्यूटी टू सिट इफ़ बायस कंसर्न एग्जिस्ट, अगर बायसनेस की कंसर्न लग रही है, हमें एग्जिस्ट कर रही है, तो फिर कोई स्ट्रिक्ट ड्यूटी नहीं होना चाहिए, ड्यूटी टू सिट की आप यहाँ पे बैठे ही बैठे। जजेस शुड अवॉइड impropriety, okay, even the appearance of the impropriety, criticism of the judgment. The article claims the judge decided the recusal plea herself instead of referring it. This reduced objectivity को कहीं ना कहीं reduce कर देता है। Judgment reportedly dismissed allegations as unfounded and manufactured. जो एलिगेशन अगर unfounded है, manufactured खुद से बनाए हुए लगे हैं, तो उनको हम dismiss कर सकते हैं, उनको dismiss कर सकते हैं या dismiss किया जा सकता है, ओके। सो द इशू इन रीजनिंग, इशू क्या आ रहा है रीजनिंग में। सो द जजमेंट फोकस ऑन प्रोवाइडिंग एब्सेंस ऑफ द एक्चुअल बायस, इग्नोर द स्टैंडर्ड ऑफ द रीजनेबल अप्रहेंशन ऑफ द बायस, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स एस्टेब्लिश्ड लीगल प्रिंसिपल की बात करता है। फेयरनेस ऑफ द प्रोसेस कंसर्न, ठीक है, अगेन फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द जज, तो यहाँ पे इन सभी की जो कि कोर एथिकल टॉपिक्स है उनकी बात की गई है, ओके, डन। पब्लिक कॉन्फिडेंस इन जुडिशरी, आउटकम्स एंड इम्पैक्ट्स क्या होंगे। केजरीवाल रिपोर्टेडली रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट फर्दर इन प्रोसीडिंग्स, कि अगर ये जज करेंगी केसेस को हैंडल, सो आई विल नॉट कंसीडर इट द डिसीजन। मैं सेट अ प्रॉब्लमेटिक प्रेसिडेंसेस हो सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, यहाँ पे बायसनेस का इशू आ रहा है, ट्रांसपेरेंसी बात की है, फेयरनेस को कैसे मेंटेन करना है इसके बारे में बात की है, ठीक है। हमारी हायरार्की क्या है, सुप्रीम कोर्ट सबसे अपर, देन हाई कोर्ट इससे बिलो, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इससे बिलो या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अब अगर दिल्ली हाई कोर्ट का केस जा रहा है, अगर ये इससे सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो अब ये ऐसे इंटेल से कि सुप्रीम कोर्ट में इस केस को ले जाएंगे, है ना। सो वही एथिकल जजमेंट्स हैं, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस की बात की है, ठीक है, बायसनेस की बात की है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, ठीक है। एंड सम मोर एडवांस इंफॉर्मेशन आर लाइंग ओवर हियर, यू कैन ऑल्सो go through everybody, okay. Different judgments are also mentioned here. Apart from this, given some judgment via me in this particular lecture. So if you are getting bored, you can go through the courts. What you do today can improve all your tomorrows. So आज हम जो भी कर रहे हैं हमारे आने वाले tomorrows को definitely improve करेगा. Then again, don't stop until you are proud. तो आप रुकिए मत, keep running, चलते रहिए. And also it is required that trust the process, okay, in which you are moving through. Then next article जिसने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पब्लिक के जो माइंडसेट है उसको सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं ट्रिगर किया है ना, विच ट्रिगर हेयर दी राइट टू लाइफ, ठीक है, राइट टू प्रिवेसी, नन राइट टू इक्वलिटी, government's failure, more of the things we'll talk about. So हम थोड़ा हिंदी में देखेंगे इस आर्टिकल के बारे में। ये जो पिक्चर आपको दिख रही है ये उड़ीसा से निकल के आ रही है। उड़ीसा, कलिंगा वॉर, वी हर्ड अबाउट सम्राट अशोका, गो थ्रू आर प्रीवियस लेक्चर सीरीज। उड़ीसा's कैपिटल इज दी, राइटिंग इन शॉर्ट, भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर।
एंड लेट्स टॉक अबाउट उड़ीसा में ओलिव रिडले टर्टल के बारे में भी बात की जाती है, घाहिर माता बीच, है ना। सो ये भी इम्पोर्टेंट है, यू कैन गाइस गो थ्रू द ओलिव रिडले टर्टल, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट एंड व्हाई इट इज़ अट्रैक्टिंग आवर व्यूअर्स attention. So Odisha man brings dead sisters skeleton to bank after being told to bring account holder to withdraw money. Actually ये जो मैन है ये उड़ीसा का है, ये ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करता है, ठीक है। मीन्स सीधी बात है, इलिटरेसी डेफिनेटली होगी, पढ़ना लिखना ये जानता नहीं है। हुआ क्या, इसकी बहन के नाम के कुछ अकाउंट में पैसे रखे हुए थे, कुछ 19 to 20 है, इससे थोड़ा बहुत अब भी जा सकता है। होता ये है कि इसकी बहन मर जाती है। अब इसने इसका जो भी है सारा प्रोसेस, अंतिम संस्कार वगैरह, क्रीमेशन इसका हो गया डन। इसकी बहन के नाम के पैसे थे, ये बंदा जाता है बैंक में जाता है, बैंक ऑफिशियल इसको मना कर देते हैं, डिनाई करते हैं कि आप जो भी है अपनी बहन का डेथ सर्टिफिकेट लेकर आइए। क्या लेकर आइए? डेथ सर्टिफिकेट लेकर आइए। पहली बात तो कई बात ये है ना कि मैंने क्या कहा और आपने क्या गेन किया, इसके बीच में भी कहीं ना कहीं मिसमैचेस हो सकती हैं। बैंक ऑफिशियल जो बैंक के जो मैनेजर्स हैं, ये जो भी एंटिटीज़ हैं, पहली बात तो ये इलिटरेट है तो बंदा समझ ही नहीं पाया होगा कि ये डेथ सर्टिफिकेट क्या होता है। पहली बात तो उनको हिंदी में समझाना चाहिए था, ठीक है। अब ये बंदा जिसकी बहन कब की मर चुकी है, ठीक है, ये अब क्या करेगा, तो इसको कुछ समझ नहीं आता। ये जाता है उसके कॉर्प्स को, उसकी डेड बॉडी को वहाँ से निकाल के लाता है, मतलब उसका जो स्केलेटन रहता है वहाँ से उसको निकाल के ले आता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब इसको शो करना पड़ रहा है एज एन एविडेंस। सो लेट्स रीड अबाउट द आर्टिकल इन डेप्थ। उड़ीसा एक्ट्स फास्ट आफ्टर ट्राइबल मैन कैरी सिस्टर्स रिमेंस टू बैंक। तो जो ये अब इसके हाड़ मासी बचे हुए हैं वो लेके आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे कहीं ना कहीं इशू इसकी साइड से भी है, कहीं ना कहीं बैंक की साइड से भी। क्यों? क्योंकि आजकल हमें अच्छे से पता है बैंक में कितने फ्रॉड्स केस आते हैं, है ना। कोई भी इंडिविजुअल आएगा वो क्लेम करेगा, तो हर किसी को थोड़ी ना, तो कुछ हमें एज एन एविडेंस जो है हमें कुछ तो चाहिए ना, कि हम जिसे कंसिडर कर पाएँ, जो कि लीगल डॉक्यूमेंट हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों की भी दिक्कत नहीं बता सकते, इन लोगों की भी साइड से पूरी तरह प्रॉब्लम नहीं बता सकते हम लोग, है ना। डन, लेट्स रीड। A day after a tribal man in Odisha's क्योंझार डिस्ट्रिक्ट याद रखना है, क्योंझार, ओडिशा, carried his deceased sister's skeleton remains to a bank as a proof of the death in order to withdraw money बहन के बैंक अकाउंट से विड्रॉ करना था, ठीक है, from her account. The administration moved with the unusual alacrity, ठीक है। So alacrity on the Tuesday, the completing all formalities and disbursing the payments within a single day, ठीक है। Disbursing the visual of the Jitu Munda of the Daina Lali village या दियाना लाली विलेज अंडर द पटना ब्लॉक, ठीक है, पटना ब्लॉक के अंडर में इस मैन का ये नाम है। वॉकिंग थ्रू द स्ट्रीट्स मतलब सड़कों पर घूम रहा था, ये सड़कों पर, ये गली, ये वहाँ के जो कॉर्नर्स होते हैं ना हमारे, मेनली जो हमारे अपार्टमेंट्स होते हैं रोड वे वाली लोकेशन पे, ये ठीक है, ये तो मेन हाईवे, ये इसके आसपास की लोकेशन जिस पे कॉमन मैन रन कर सकता है, ठीक है। सो व्हाट हैपेंड, जो मैंने बता दिया है। सो ही इज़ नथिंग टू डू, सो व्हाट डज ही डू, he goes to that particular skeletons in that location of the cremation location, where the cremation's location where his sisters जो स्केलेटन था वो वहाँ से वो उसको डिगिंग करता है, खोदा खादी करता है और लेके आ जाता है। तो ये पूरा मुद्दा है। अब थोड़ा देखते हैं। द लोकल तहसीलदार वेरीफाइड द फैमिली डिटेल्स थ्रू द रेवेन्यू इंस्पेक्टर डन एंड द प्रॉम्प्टली इश्यूड द लीगल हियर सर्टिफिकेट। क्योंकि एक्चुअल में जिसको वो क्लेम करा, जिसकी बहन के बारे में बात करा कि वो एक्चुअल में लीगल हियर है उस सर्टिफिकेट के, जिसका सब्सिक्वेंटली जो बैंक ऑफिशियल हैंडेड ओवर द 19,300 रुपीज़ टू द फैमिली मेम्बर्स सेड मानस दंडपंत ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ऑफ द पटना ब्लॉक। ये ऑफिसर का नाम है, पटना ब्लॉक है। The Keonjhar district's administration initiated a probe into the circumstances that forced Mr. Munda to carry the skeleton remains in full public view. अब जब ये skeleton बाहर आ चुका, उसके बाद में ये चर्चा का विषय बनी। Means point of the discussion in our news, which is running rapidly and which is attracting the mindset and the attention of the viewers. So definitely, तो ये सारा कुछ मुद्दा यहाँ पे था। You can see they asked by the bank authorities to furnish necessary document कि जाओ भाई डॉक्यूमेंट लेके आओ, show us that certificate of your sister, and then we'll further proceed the procedure with respect of this withdrawal amount to about
विच यू आर क्लेमिंग नाउ. ओके, सो ये पूरा है कि बुरियल साइट्स एक्सह्यूम्ड दिस स्केलेटन रिमेन्स एंड वॉकड अबाउट 2.5 किलोमीटर टू द बैंक. 2.5 किलोमीटर लगभग डिस्टेंस ट्रेवल करके ये आता है अपनी बहन का स्केलेटन अपने शोल्डर्स पर रख के. थिंक अबाउट कितनी ज़्यादा बायसनेस है. नो मैटर अबाउट इंडिविजुअल्स डिग्निटी, नो मैटर ऑफ हिज वर्ड्स, एंड somehow I can say about this particular article then this is the thoroughly mismatch of the systems and also this particular individual's thought and his. लेकिन कितना ये फोर्स्ड है, कितनी इसकी कंडीशन ख़राब है कि इसको आज इतना कुछ इसको प्रूव करना पड़ गया. सो इट्स somehow आर फेलियर ऑफ द सिस्टम. ओके, लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट आर्टिकल. Rajnath Singh calls for unified SCO approach to eliminate terrorism. So SCO talk about the elimination of the terrorism. ठीक है, terrorism. Okay. So the minister says the real test for SCO members lies in maintaining consistency and rejecting double standard, particularly in addressing state-sponsored cross-border terrorism की यहाँ पे सबसे ज़्यादा बात की जाएगी. NIA दिल्ली में अटैक हुआ 26/11 मुंबई होटल ताज. कुछ याद आ रहा है आप हमारे प्लेलिस्ट से गो थ्रू कर सकते हैं. देयर आई मेंशन इन डेप्थ. सो फर्स्ट पहली बात तो डिफेंस मिनिस्टर कौन है हमारी कंट्री का? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह. यू कैन सी द पिक्चर ओवर हियर. ठीक है, डन. टेररिज्म रिमेन्स द मोस्ट सीरियस थ्रेट. सीधी बात है, टेररिज्म सबसे बड़ी थ्रेट है टू द ग्लोबल पीस के रिगार्डिंग and the emerging world order, Defense Minister Rajnath Singh said while addressing the SCO meeting. Different defense ministers was there in the Bishkek. So SCO कहाँ हो रही है अभी? Bishkek. Everybody let me know in the comment section where the Bishkek is like. Okay. Emphasizing zero tolerance, he called for an unified and consistent approach to the eliminate terrorism, extremism and the radicalism in all form. हमें टेररिज्म हटाना है, एक्सट्रीमिज्म हटाना है एंड रेडिकलिज्म हटाना है सभी फॉर्म में, मतलब जहाँ जहाँ ये लाइक करता है. ठीक है, दैट इज़ वाई दिस आर्टिकल इज इम्पोर्टेंट इन आवर न्यूज़. ठीक है, सो हियर डिस्क्राइबिंग द SCO रीजन एज होम टू सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन. SCO को वर्ल्ड के मोस्ट एंशिएंट मतलब पुराने सिविलाइजेशन से यहाँ पे एसोसिएट करने की बात की. राइटिंग इन शॉर्ट सिविलाइजेशन. ठीक है, मिस्टर सिंह सेड इट रिफ्लेक्टेड अ शेयर्ड हेरिटेज ऑफ कल्चरल एक्सचेंज की बात करता है, ट्रेड की बात करता है, कोऑपरेशन की बात करता है. ही एम्फेसाइज्ड दैट दिस लेगेसी शुड गाइड मेंबर नेशंस इन एड्रेसिंग प्रेजेंट डे चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट collectively with respect of the terrorism extremism. ठीक है, ओके. कॉलिंग फॉर अ मोर ऑर्डरली वर्ल्ड रेदर देन अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर. न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे फॉलो मत करो, आपको एक कॉमनली हमें एक वेल डेवलप्ड वेल मैनर्ड ऑर्डरली वर्ल्ड के टुवर्ड हमें बात करनी होगी, ना कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर. ठीक है, न्यू वर्ल्ड होंगे तो अभी के हिसाब से होंगी. फॉर्मर कंडीशंस क्या हैं? फॉर्मर कल्चरल एविडेंसेस, कल्चरल लिंकेजेस, टेररिज्म के रिगार्डिंग क्या क्या अनसर्टेनिटीज़ हैं उनके बारे में यहाँ पे बात की गई है. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इन विच ईयर द SCO केम इन टू बीइंग. ओके, अब इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो हु इज़ अनअवेयर अबाउट द पहलगाम अटैक. ठीक है, पहलगाम अटैक के बारे में हर कोई जानता है. ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी मेंशन किया हुआ है. ठीक है, सो एवरीवन ये है हमारी SCO से रिगार्डिंग. देन सर्वाइकल कैंसर, सबसे ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं. सर्वाइकल कैंसर हुआ, ब्रेस्ट कैंसर हुआ. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट टू माइंड द हेल्थ सेक्टर awareness. Health sector awareness is important over here. In 2008, Professor Harald Jorgensen received the Nobel Prize for his discovery that persistent infections with the high risk strand of the human papilloma virus (HPV). ठीक है, तो यहाँ पे somehow the cervical cancer cases are rising and also the penal cases are also with respect of cervical cases are also rising and HPV virus is important over here to read about it. ठीक है, so that is why this is important कि हमारा WHO भी हमारे बात करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, इसकी जो रिपोर्ट्स हैं
WHO की, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो सर्वाइकल कैंसर है इज़ अ सोर्स ऑफ द एक्सट्रीम फिजिकल मिस्ट्री, जो कहीं ना कहीं फिजिकल मिस्ट्री बन गई। समहाउ इट इज़ ऑल्सो दी मैटर ऑफ द प्राइवेसी। समहाउ वी इन जनरली वी आर नॉट टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर डिजीज़ विच इज़ दी क्रिएटिंग मोर ऑफ द नंबर ऑफ द मोर fatalities. So this is also as means, okay. So it is the second most common cancer among the women in India. Women में second most common हो गया है, second most common cancer form, okay, in the women's, ठीक है। सो विच इज़ द फर्स्ट रीज़न ऑफ द कैंसर इन द वीमेंस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो नथिंग मोर देन अबाउट दी, यहाँ पे कैसे हमें यहाँ पे इन केसेस को सबसे ज़्यादा हमें बाहर लाना चाहिए, इनके बारे में बात करनी चाहिए, इनकी स्क्रीनिंग के बारे में बात करनी चाहिए, इनके रिमूवल के बारे में बात करनी चाहिए। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। HPV वैक्सीनेशन कैन एंटर दिस सिनेरियो इन 2006। कौन सा? HPV का जो वैक्सीनेशन हुआ था, ठीक है। अभी हमें पता है सर्वाइकल कैंसर के रिगार्ड में, सर्वाइकल कैंसर के जो रिगार्डिंग है बिलो द 15 जो एज जो हमारी जो गर्ल्स हैं उनके बारे में बात की जा रही है, तो सर्वावैक्स करके डोजेस दिए जा रहे हैं, वैक्सीन दी जा रही है, तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। अब इस आर्टिकल के बारे में बात करूँ तो 1988 से 2016 तक स्कॉटलैंड, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, इसमें जो है 0 सर्वाइकल केसेस है, मतलब इसने सर्वाइकल केसेस को पूरी तरह एलिमिनेट कर दिया है। और डिफरेंट कंट्रीज है। यू कैन गाइज गो थ्रू बाय दी पर्टिकुलर दिस स्लाइड विद रिस्पेक्ट ऑफ टू नो मोर अबाउट इट। एज 12 to 13 है, सम ऑफ द इट टिल दी 15 years ऑफ एज ऑफ गर्ल्स, इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट। एंड ये हमारा रोहिंग्यास के बारे में अगेन जो आर्टिकल है, यू कैन गो थ्रू बाय आवर लेक्चर प्लेलिस्ट सीरीज। एंड इफ़ यू लाइक दिस सेशन, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।